Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 16th July 2020. So let us see which are the important articles and important developments that had happened yesterday. So we can see for mains examination and for prelims examination, we will see one by one these articles. The most important articles development we can see in terms of international relations is that there was virtual summit between European Union and India recently, and Prime Minister of India addressed on in that summit. And these two important articles on page number 1 and 7 regarding India and EU relations. Okay, so let us try to understand some key points from the first article, that what happened in this summit. Okay, so in this summit, India and European Union committed to a framework for strategic cooperation until 2025 and vowed to cooperate on their response to the coronavirus pandemic and at UNSC. ठीक है. Also, two sides announced a high-level dialogue which was suspended in 2013. Now this is being resumed to try and take bilateral trade investment agreement forward. तो ये कल ही हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, तो आज उसके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे. इंटरनेशनल रिलेशंस GS2 का जो पार्ट है आपका मेंस में, ठीक है, तो उसके लिए हम इंडिया EU रिलेशंस आज हम देखने वाले हैं. तो व्हाट आर द अदर आउटकम्स? द लीडर डिस्कस्ड इंडियाज टेंशंस विद चाइना एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, द सिचुएशन विद ईरान and concerns over cross-border terrorism from Pakistan. At the same time, EU leadership had raised concerns over the situation in Jammu and Kashmir, let's say after the abrogation of Article 370 and subsequent lockdown in the Valley region, and later on the Citizenship Amendment Act. तो इसके रिगार्डिंग EU को कंसर्न्स है, ह्यूमन राइट वायलेशंस के रिगार्डिंग हो या फिर हम बोलते हैं कम्युनल हार्मनी एंड इक्वालिटी के रिगार्डिंग. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर्स के जो रिमार्क्स है इंडिया EU रिलेशनशिप के ऊपर, आपने वो डायरेक्ट कोट कर सकते हो एग्जाम में. ठीक है, तो जैसे कि आवर पार्टनरशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी एंड दिस रियलिटी इज क्लियरर गिवन द सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड. हम देख सकते हैं कि कैसे वर्ल्ड में स्पेशली चाइना के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि कैसे एग्रेसिव स्टांस हो रहा है, और ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमारे PM ने बोला है. At the same time, India and EU shared universal values like democracy, pluralism, respect for international institutions and multilateralism. ये एग्जैक्ट वर्ड्स आपने आंसर में लिखने चाहिए. ठीक है, तो जब भी इंडिया EU का रिलेशन आएगा तो स्पेसिफिक ये स्टेटमेंट डाल देना, और कोटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ इनपुट्स लेने एग्जाम के लिए. ठीक है, तो क्या है इंडिया और EU के शेयर्ड वैल्यूज, जिसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी है, मल्टीलैटरलिज्म है, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, या फिर प्लूरलिज्म की जो बात करते हैं. ठीक है, तो ये सारे शेयर्ड वैल्यूज हमने लिखने चाहिए आंसर में. सो नाउ वी विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ इंडिया EU रिलेशंस एंड लेट अस डिस्कस विथ रिस्पेक्ट टू आवर मेंस एग्जामिनेशन GS2 पेपर. सो व्हाट आर द कॉमन इंटरेस्ट दैट वी कैन सी in India EU relations, both for India and European Union, is that three important aspects that the article also mentions is that, okay, so what are these three let's say points? Diversifying strategic value chains, and we can say addressing climate change, and third is we can say enhance strategic autonomy and their global standing. 1, 2 और 3 एस्पेक्ट्स यहाँ पे ज़्यादातर डिस्कस किए गए. तो हम देखते हैं इसमें वन बाय वन कहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए उन्होंने. ठीक है, तो इन इकोनॉमिक टर्म्स EU इज़ इंडियाज फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर. जो हम फैक्ट्स लिख सकते हैं यहाँ पे 2018 में कितना हुआ है, तो इंडिया में जितने FDI इन्फ्लोज आए हैं तो उसमें 22% जो है वो EU से आए हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिख सकते हो. Enhanced business cooperation can help both EU and India diversify their strategic value chain, जो ये सेकंड वाला बात कर रहा है. ठीक है, and reduce economic dependency on certain countries like China. ठीक है, on climate change जो है EU बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली जो है ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करता है. हमें पता है जैसे कि हम इंडिया से जो है जर्मनी के साथ जैसे ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं. ठीक है,
तो EU का जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी है दैट दे वांट टू हैव कॉन्टिनेंट कार्बन इमिशन न्यूट्रल बाय 2050 थ्रू दिस न्यू इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी कॉल्ड एज ग्रीन डील. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास कैपिटल है. ध्यान रखना है, ये चीजें लिखनी चाहिए आंसर में. क्या है? टेक्नोलॉजी है और दूसरा है कैपिटल है, जो इंडिया के लिए हेल्पफुल हो सकता है टू मीट्स इट्स पेरिस एग्रीमेंट let's say commitments. So together European Union and India can move forward for welfare or global welfare or greater good, we can say that. ठीक है, adopting this direction. In geopolitical terms, India find itself facing increasingly restive and powerful rivals. ओके, तो हम देख रहे हैं कि इंडिया पैसिफिक रीजन में कैसे इंस्टेबिलिटी हो रहा है, हम ये फॉलो अप में रख रहे हैं. ठीक है, तो चाइना का जो भी स्टैंड है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में या इंडिया के साथ जो, तो उसकी वजह से ईयू के साथ कोऑपरेशन करके हम एक जियोपॉलिटिकल लिवरेज ले सकते हैं. ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट आपने ऐड करना चाहिए उसमें. ठीक है, तो कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स में पहला तो ये है ट्रेड इम्बैलेंस है काफ़ी, जैसे कि इंडिया फॉर्म्ड अंडर 3% ऑफ टोटल ईयूज ग्लोबल ट्रेड. रादर इंडिया का कितना है? तो वो 11% है ईयू के साथ में टोटल. ठीक है, तो ये एक इम्बैलेंस है. लो इन्वेस्टमेंट लेवल फ्रॉम ईयू एज कंपेयर टू चाइना. ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, ऊपर देख सकते हैं आप कि चाइना से हम ईयू जो है इन्वेस्टमेंट 175 बिलियन यूरो करता है, तो इंडिया में कितना है? 67 बिलियन. ठीक है, तो ये काफ़ी हम बोल सकते हैं डायरेक्टली डबल हो रहा है वहाँ पे, डबल से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, सॉरी. ठीक है, तो ये ध्यान देना है. थर्ड एस्पेक्ट इज दैट ईयू ऑलवेज रेज कंसर्न्स रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इंडिया. वो बात है JNK की अभी सिचुएशन की हो या कहीं कैपिटल पनिशमेंट की बात हो या कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पे ईयू का कंसर्न ये रहता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है. और यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग, हमने वो रेटिफाई नहीं किया है. तो ये कंसर्न्स हमेशा ईयू को रहते हैं. ठीक है, तो आपको कंसर्न्स में चीज़ें याद रखनी है: ट्रेड इम्बैलेंस, लो इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस. ठीक है, तो ये चीज़ें बाद में हम वे फॉरवर्ड में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक इंडिया कुड सक्सीड अट्रैक्टिंग यूरोपियन इन्वेस्टमेंट आफ्टर एड्रेसिंग लेट्स से म्यूचुअल ट्रस्ट डेफिसिट. ये कैसे हो सकता है? थ्रू पीपल्स मोबिलिटी एंड कनेक्टिविटी. इससे स्टार्ट किया जा सकता है, ये एक फाउंडेशन बनता है टू हैव अ बोन होमी बिटवीन दीज कंट्रीज. एंड देन द रिसेंट स्टेप of let's say resuming this high level dialogue is a welcome step for let's say moving ahead with FTA negotiations. At the same time, India and EU must together function to let's say reform multilateral institutions, and WTO can be the first such institution where these two countries, or we can say EU and India, can let's say move forward together. The value of EU reaches far beyond the economic cloud. ये हमें एक अच्छा स्टेटमेंट मिला है जिसमें हम ऐड कर सकते हैं: EU champions the rule based international order which is being increasingly challenged by proliferation of exceptionalism. ठीक है, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल, जैसे चाइना ने साउथ चाइना सी का जो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है जजमेंट जो है ट्रिब्यूनल का, वो एक्सेप्ट नहीं किया है. तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सेप्शनलिज्म. ठीक है, तो ये बढ़ते हुए हमने बोलना चाहिए कि ईयू जो है इसको फोकस करता है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, तो इंडिया भी वही बोलता है, तो इसलिए दोनों ने साथ में काम करना चाहिए इन फ्रंट्स पे. ठीक है, ए स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप वुड हेल्प बोथ ईयू एंड इंडिया बिकम ग्लोबल डिसीजन मेकर. ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ईयू भी है जो सपोर्ट करता है इंडिया के परमानेंट सीट के लिए. बहुत सारे कंट्रीज़ है यूरोपियन यूनियन के, वो बहुत सारे कंट्रीज़ हमें सपोर्ट करते हैं, लाइक फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है. ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें आंसर में लिखनी चाहिए. तो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है: इंडिया एंड ईयू हैज़ मेनी कॉमन इंटरेस्ट विच शुड बी हार्नेस्ड फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द वर्ल्ड.
एवेल्युएट, ठीक है। तो ग्रेटर गुड में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्लाइमेट चेंज वाला एस्पेक्ट लिखिए ताकि पूरा वर्ल्ड को उसका बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा आप क्या करिए तो ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड पीस की बात करिए, तो दोनों के जो शेयर्ड वैल्यूज है वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो ग्रेटर गुड का मतलब ये होता है कि दोनों अगर कोऑपरेट करेंगे और अच्छे से काम करेंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू ग्रेटर गुड और लेट्स से वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो एक ये चीजें एस्पेक्ट उसमें ऐड करनी चाहिए आंसर में। फाइन, सो दिस वाज अबाउट इंडिया एंड ईयू रिलेशंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, editorial page, page number 6. It's time to flatten the pandemic stereotyping. So what the article is talking in this let's say context, we can say that the stereotyping of COVID-19 patients by labeling them super spreaders. तो ये सुपर स्प्रेडर नाम का वर्ड एक्चुअली ये एनालिसिस से आया है। ये जो डिसीजेस थे लाइक सार्स है, एबोला वायरस है और अभी कोविड-19 का, तो उसमें क्या बोला गया है कि एनालिसिस में कि 80-20 रूल बैठता है उसमें। तो ये क्या रूल बोलता है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे जो केसेस होते हैं तो उसमें से 80% केसेस जो है वो 20% लोग ही स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्जर स्प्रेड ऑफ दिस डिसीजेस। ओके, सो ये 80-20 रूल जो है वो एक स्टडी के अंडर पता चला है। तो अभी ये थोड़ा एथिकल एंगल से डिस्कस किया गया आर्टिकल है, ठीक है। तो क्या है एथिकल एंगल या एथिकल एस्पेक्ट्स इज दैट द नेगेटिव consequences or the direct and indirect associated with negative stereotyping such as discrimination, hostility, negative attitudes and lingering effect of lack of self control and aggression. And now this is being visible in India. If you take the example of Muslim community और जो तबलीगी जमात का जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ था, राइट, तो उसके ऊपर से एक कहीं तरीके का निगेटिव एटीट्यूड तैयार हो गया है लोगों में और वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है हमारी सोसाइटी में। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय लेट्स से एटीट्यूड। एटीट्यूड जो होता है एक प्री डिस्पोजिशन या हम उसको बोलते हैं एक एक्वायर्ड स्टेट ऑफ माइंड होता है टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। नाउ दैट ऑब्जेक्ट कैन बी लेट्स से लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, ठीक है। तो हम ये जो स्टीरियोटाइपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे निगेटिव एटीट्यूड दिखाई देता है। स्टीरियोटाइपिंग मतलब क्या है कि ये ऐसा ही है और वो एटीट्यूड स्प्रेड करना सोसाइटी में, ठीक है। तो यानी कि क्या है, without any critical questioning, without any rational thinking, what happens is people start spreading this let's say assumptions they have or let's say knowledge they have on the false belief. Okay, so this is called as stereotyping. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो जैसे बोला जाता है हमारे सोसाइटी में अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी जैसे बोला जाता है, ठीक है, दैट वीमेन शुड डू this kind of work, household work, they should not go outside or let's say do any outside job, or women should not let's say talk like this, and all these things are there right in our society. So this is called as stereotyping, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं कि women cannot fight in let's say at the fronts or border, जो आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट के सामने जब परमानेंट कमीशन की बात आती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का स्टीरियोटाइपिंग एटीट्यूड है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है और ये एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एथिक्स पेपर में स्टीरियोटाइपिंग एटीट्यूड का। अब इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होता है, इसकी वजह से इम्पैक्ट होता है लाइक पीपल स्टार्ट लेट्स से बॉयकॉटिंग सोशली दीज पीपल। ओके, जो बोल रहे हैं ना ये सुपर स्प्रेडर, ये वर्ड जो यूज किया है, ठीक है, तो उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया जाता है सोसाइटी में, ठीक है। या फिर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके अगेंस्ट होस्टाइल एटीट्यूड होता है सोसाइटी का, ठीक है। और कभी कभी वो सेल्फ कंट्रोल या फिर खो देते हैं और एग्रेशन पे वायलेंस भी हो जाता है। एंड समटाइम्स वी नो दैट बिकॉज ऑफ दिस इट हैज रिजल्टेड इनटू लिंचिंग ऑल्सो। जैसे कि आपको पता है कि कोई अननोन पर्सन गांव में आता है तो आजकल उसके लिए कैसा एटीट्यूड तैयार किया जाता है कि ही इज अ चाइल्ड अबडक्टर। इसको बोला जाता है स्टीरियोटाइपिंग एटीट्यूड, कि कोई भी बाहर से अननोन पर्सन आया कि उसको क्या बोला जाएगा, तो
चाइल्ड अबडक्टर है, और इस पे कोई पर्सन जो है उस पे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेगा, उसको किसी और ने बोला है रहता है, ठीक है, कि ऐसा उसके दूसरे गांव में कोई केस हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो एग्रेशन बढ़ता है, और कोई ऐसा एक केस जेन्युइन केस होता है जिसपे ये लोग जो है एग्रेशन दिखा के वहाँ पे वायलेंस होता है, ठीक है। So this is, we can say, this is very negative thing that is happening in our society at present during this COVID-19, and the groups labeled super spreaders represent some of the most vulnerable groups in Indian society. जैसे फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल वेंडर्स का एग्जाम्पल दिया गया है इस आर्टिकल में, ठीक है। तो जैसे तमिलनाडु में ये केस है, वेजिटेबल वेंडर्स है, या फिर गुजरात में ऐसा हुआ है कि वेजिटेबल वेंडर जो है उनको सुपर स्प्रेडर बोल के डेजिग्नेट कर दिया है सोसाइटी ने, और बोला है कि ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारी सोसाइटी में चल रहा है जहाँ पे हम बोलते हैं कि ये निगेटिव एटीट्यूड, जिसको बोलते हैं इरेशनल थिंकिंग, लैक ऑफ वी कैन से क्रिटिकल क्वेश्चनिंग, ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग, एंड दिस इज रिजल्टिंग इन टू प्रॉब्लम especially to vulnerable sections in society. So as a way forward, immediate way forward, we can say that the article is saying that government should support or have supportive infrastructure for these groups. For example, government should provide them cost free mask, sanitizer and support the families of infected individuals. या फिर जो पब्लिक ऑफिशियल्स और मीडिया जो होता है उनको ये सुपर स्प्रेडर नाम का वर्ड से कॉल नहीं करना चाहिए, ये वर्ड बहुत ही गलत है, निगेटिव है, ये स्टीरियोटाइपिंग एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक अभी इमीडिएट एक्शन के लिए है, बट लॉन्ग टर्म एक्शन में आपको ध्यान रखना है कि ये स्टीरियोटाइपिंग एटीट्यूड और ये सब किस वजह से आता है, लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, या फिर हम बोलते हैं लैक ऑफ रैशनल थिंकिंग, ठीक है, या फिर क्रिटिकल क्वेश्चनिंग की जो बात होती है, तो ये इनकी वजह से आता है। क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसकी ट्रूथनेस जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइपिंग एटीट्यूड, डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ सच एटीट्यूड ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक स्प्रेड इन इंडिया। तो ये सब डिस्कस कीजिए उसमें, ठीक है, एथिक्स पेपर में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, फाइट अगेंस्ट हंगर डिसरप्टेड बाय स्लो डाउन। तो एक नया रिपोर्ट रिलीज हुआ है, रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020। नाउ दिस रिपोर्ट इज कंपाइल्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय 5 ऑर्गेनाइजेशंस, FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP, WHO। तो ये पांचों ऑर्गेनाइजेशन ने मिला के ये मतलब रिलीज किया हुआ रिपोर्ट है। फर्स्ट एडिशन जो है वो 2017 में इसका आया था। तो व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट, हमारे एस्से के लिए कहाँ कहाँ यूज करोगे इसको, एस्से में ये फैक्ट्स यूज करने हैं, और प्रीलिम्स के लिए ये रिपोर्ट के बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बिटवीन 8.3 करोड़ टू 13 करोड़ पीपल ग्लोबली आर लाइकली टू गो हंग्री दिस ईयर ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन ट्रिगर्ड बाय कोविड-19। तो जब भी कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये फैक्ट जो है जेन्युइन हम बोलते हैं ग्लोबल रिपोर्ट से, वो ऐड कर दीजिए आंसर में, ठीक है। या फिर अगर हम बता सकते हैं कि ये रिपोर्ट बोल रहा है कि जो टू एंड द हंगर, ये हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वी आर स्टिल ऑफ ट्रैक टू अचीव दिस। तो 2030 तक हमें अचीव करना है, वो करने के लिए अभी तक हम राइट ट्रैक पे नहीं है, ये ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एशिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, सारे जो है, ठीक है। सेकंड वन इज अफ्रीका एंड देन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज, फाइन। तो ये सब हाइलाइट्स है जो आपने एस्से में यूज करने चाहिए, फाइन। सो किस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये देख सकते हैं आप, कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज हो सकता है, यहाँ पे स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट सोचेगा कि जहाँ जहाँ फूड है, या फिर
ज़्यादातर हम यहाँ पे एक फूड है, तो ये तीन ही ऑर्गेनाइजेशन रिलेवेंट दिखती है, यूनिसेफ और WHO रिलेवेंट नहीं दिखता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट WHO को भी मार्क करेगा, तो ये और कंफ्यूजन होगा, देखना ये दो ऑप्शन में, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, यूनिसेफ भी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, यूपीएससी में, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिजिनियस वैक्सीन फॉर न्यूमोनिया गेट्स नॉट, DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अलाउ कर दिया है कि ये अभी कमर्शियल लेवल पे मार्केट में आएगा। इसको बोला गया है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है वो जो छोटे बच्चों में न्यूमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से, तो उसके लिए ये कॉन्जुगेट वैक्सीन डेवलप किया गया है। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली मतलब इंजेक्शन दिया जाता है हमारे मसल्स में। तो इसमें हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए क्या है, तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होता है, तो वैक्सीन विच कंबाइंस ए वीक एंटीजन विथ ए स्ट्रॉन्ग एंटीजन एज अ कैरियर सो दैट इम्यून सिस्टम हैज अ स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स टू वीक एंटीजन, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, हमारे सिस्टम में एक वीक एंटीजन स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ छोड़ा जाता है। तो उससे क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग एंटीजन के फाइट करते करते वो वीक एंटीजन को और अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे। हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज तैयार किए जाते हैं एंटीजन्स के साथ, ठीक है। तो ये एक आपको चीज़ पता होनी चाहिए, और इसीलिए इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में आपको, एक कॉन्जुगेट वैक्सीन इज। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो सकता है C और D में, तो ऐसे टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए और इनपुट्स लिया कीजिए। मोदी एग्जॉर्ट्स यूथ टू स्किल रीस्किल अपस्किल। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जब बात करते हैं तो कुछ ना कुछ नया लाते हैं, यह हमें पता है। और ये देखो वर्ड्स जो है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। हम ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स आप ऐसे में लिख सकते हो, मेंस में लिख सकते हो, स्किल रीस्किल अपस्किल। नाउ व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, because the present situation, the changing nature of economy, the COVID-19 disease pandemic disease spread, उसकी वजह से हमें पता है कि nature of economy, nature of industries and their working is going to change, and accordingly the people should change their skill set. Okay, so that's why yesterday 15th July हम बोल सकते कि वर्ल्ड स्किल डे भी था, और इट वाज आल्सो 5th एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन, ठीक है। तो स्किल इंडिया मिशन जो 2015 में लॉन्च किया था उसको 5 साल कंप्लीट हुए, और उसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर एड्रेस दिया है। तो ये 3 वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, स्किल रीस्किल अपस्किल, ठीक है। तो ये हम कुछ स्टेटमेंट्स है जैसे कि उन्होंने यूज किया है, स्किल इज समथिंग विच वी गिफ्ट टू आवर सेल्फ विच ग्रोज विथ एक्सपीरियंस, टाइमलेस, कीप्स गेटिंग बेटर विथ टाइम एंड ऑल। ये सब चीज़ें तो आप लिख ही सकते हो, बट बहुत ही अच्छे से स्टेटमेंट लिखा गया है तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अबाउट स्किल इंडिया मिशन, तो ये तो पता है आपको कि 2015 में लॉन्च हुआ था, टू लेट्स से स्किल अबाउट 40 करोड़ पीपल इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल्स बाय 2022, ठीक है। तो इसके ये एक्चुअली अम्ब्रेला स्कीम है स्किल इंडिया मिशन, मतलब इसके अंडर बहुत सारे सब स्कीम है। सब स्कीम में इम्पोर्टेंट क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन NSDM, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, स्किल लोन स्कीम, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर इम्प्लीमेंट होती है अम्ब्रेला स्कीम के अंडर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कब लॉन्च हुई थी, टारगेट क्या है और टारगेट ईयर क्या है, फाइन, और ये सारे स्कीम उसके अंडर के। सो दीज आर द कैप्शंस एंड कोटेशंस फ्रॉम दैट एथिक्स रिलेटेड आर्टिकल जो हमने बात की थी स्टेरियोटाइपिंग की। तो ये आर्टिकल में से आप ये 2 स्टेटमेंट जो है एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। सो दीज वेर सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम टूडेज द हिंदू न्यूज़पेपर। So for further information regarding we can say editorial discussion classes
wherein in-depth analysis of these articles and issues is done by Ansari sir and team. You can contact Lukman IAS. Thank you.